and the next part will be covered tomorrow, and followed by the NumPy and Pandas, the libraries session will be on 8th and 9th. So I think we can start. Okay. So first of all, what is Python? Okay. Before directly jumping to the code, we will be discussing a few things about it. So Python is a general purpose, interpreted, interactive, object-oriented, and high-level programming language. It was created by Guido and whatever we pronounce it. So these are right now you might be uh, for you these might be some heavy words which you can search down to make it easy for you, and you will definitely gain clarity over it in the upcoming days. And so Python is also called scripting language and interpreted language. This is something जो काफी सुनने में मिलेगा तुम लोगों को, and अगर interested हो तो like search कर सकते हो Google पे कि why it is scripted, why it is interpreted, because it is all related to its execution key, because it is broken down to the bitwise and then so on. So right now for the basics it's not necessary at all. किसी को कुछ इंटरेस्ट है ज़्यादा तो वो कर सकता है आगे जाकर. So why Python? So as compared to the other languages, it has these key features, like it is easy to use. Like if you are learning any language for the first time, it is the most easiest as compared to the other languages. Like if you start with C, C++, like we do in this college, uh, shifting to Python would be very easy, and you can really like get a grip on it in a few weeks. And like the syntax is very simple. There is no need of semicolons, no excessive brackets and all. And the community, because it is an open source language, and obviously the versatility, because there are many uses of Python, some of which I will show you in the upcoming slides. uh, okay. So where it is used in almost everywhere. Like if you explore various fields in the upcoming months of the college, like as all do, like if you have interest in machine learning or AI, and you like doing some part of like data analytics part, data visualization part. So in all of these areas, Python has a major part. Okay, so it is always beneficial to uh, have a certain basic knowledge of basics, and other parts like programming applications, even the web development, game development, and even if you are interested in finance, like their reports and all, they're also uh, uh, done in the Python. Like if you see the equity parts or the reports, if you have come across. So me personally, like I started web development after obviously after covering HTML, CSS, you go to the full stack part, and I started with like Django stack. So there also you will find Python as the majority. So it's always better to have a knowledge of the basics. So some of the exciting projects which I personally did while starting and want you to try it, like this is something like you put in a picture and you will get a sketch of it. It is merely based out of a few lines of code. Like this is the code, if you can see. Initially, you won't get the code, but it's like interesting. It will bring you interesting projects. Like it is capable of so much things. Like another project, if I can show you, like here, it uses the library of Python which is called Turtle. You don't need to go into any of the details right now. It is just for demonstration. I will just run it and show you. Like here. Oops, here it is. It will open up on terminal and you can see it is drawing the Among Us character. So yeah, this is nice. You can search for more exciting projects, and it gradually builds your interest in programming. Even if you don't know what it is, you will. And when you come to know about this in the upcoming years, you will definitely feel excited to do more. Like there's another graphic of Christmas tree.
So yeah, you can go out and search for more exciting projects. There are obviously much more things. And so now let's come to the code part. Start with the basics that we will be covering today. And first of all comes the installation part. So uh, like, can everyone tell me like who all had experience in it, like who have installed Python already, just to know. Okay, that's cool. Yeah, I can see the raised hands. Okay, then for the freshers and those who haven't installed it yet, you just have to type out Python download on Google, and the first link shows you, and just click on like download Python, and it will download a package, basically application. And after download, by the way, this is for Windows. Okay, I think Mac and Linux it is already downloaded. Then click on install now, and it will just take some permissions and setup. Let's wait for it. लाइक वैसे कोई बात नहीं, अगर अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बता सकते हो. बाय द वे, इस सेशन में वी विल नॉट बी यूजिंग दिस थिंग. Okay, so once it is downloaded, where you all can check is open the Windows and type out CMD. It will open the command prompt. Like I'm showing here, it is command prompt, and you can just type out Python, and it will show you the whether it is downloaded or not. It will display you the version, latest version which you are on, and it also takes you to the shell where you can type out certain commands. Like it is the like typing out basic commands like 3 plus 2. Okay, it will give us 5. This is what basically it is. So I need you all to write in the chat box done if you are done with this much of process. और यू कैन जस्ट लाइक चेकआउट कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, उसमें टाइप करो पाइथन, एंड उस फिर तुम्हें आगे दिख जाएगा कौन सा वर्जन डाउनलोडेड है, तो इससे विल गेट टू नो. Okay, I can see them. Cool. I will just wait for a few more seconds. Okay, I think I can move ahead. So okay, after you have done this कि डाउनलोड हो चुका पाइथन तुम्हारे सिस्टम में, तुमने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके चेक कर लिया. सो देयर कम्स IDE विच यू ऑल माइट ऑलरेडी बी नोन कि C++ कर रहे हो. तो प्रोग्राम लिखने के लिए शेल इतना अच्छा नहीं माना जाता. अगर मैं इधर एक छोटा सा कोड लिख के दिखाता हूँ, लाइक प्रिंट हेलो, जस्ट फॉर रेफरेंस कि देखो ये चल पड़ा. बट इफ यू आर वर्किंग विद सम फाइल्स एंड स्टफ की कोई फाइल कोई लाइब्रेरी, तो बेटर रहता है कि वी डू इट इन सम सॉर्ट ऑफ IDE की अरेंजमेंट सही है. तो आई पर्सनली यूज VS Code and मतलब it's really nice, and you can use others like Sublime and PyCharm like someone mentioned earlier. So it is purely personal reference, and you can go with anything you want. तो ठीक है. एंड आज मतलब इस सेशन में वी विल बी यूजिंग गूगल कोलैब, विच इज अ ब्राउजर बेस्ड
space where we can combine with anyone and write and execute the code. Okay, so it is just like Google Docs if anyone doesn't know. Here it is. So why we are using it? Because it really provides a great platform where we can present certain text with the code. Okay, so you can just open Colab because we will be working with Colab only in this session. Just type out Colab and open the first link. Okay, and either like मेरी पुरानी फाइल है तो you can create a new one, new notebook, and it will create a new notebook. Uh, yeah, so let me know in the comments कौन कौन आ चुका है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है अनम्यूट करके पूछ लो अगर किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आई यहाँ तक। कोलैब खोलो सारे। ओके, टाइप डन अगर तुम लोग कोलैब खोल चुके हो, यहाँ तक पहुँच गए हो। ओके ग्रेट, 3 लोग पहुँचे हैं बस, 4 हो गए। कूल कूल। ओके कूल, तो काफ़ी लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो कोलैब का बेसिकली यही है कि यहाँ पर पहले सबसे पहले कोलैब खोल के इधर होता है कनेक्ट, तो यू विल बी कनेक्टेड विद द रैम एंड ऑल जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि तुम कोड लिख सको एंड रन कर सको। तो एक बार यहाँ पर ये राइट कॉर्नर के साथ यहाँ पर कनेक्ट आ गया, तुम्हारा रैम डिस्क डिस्प्ले हो जाती है। तो आफ्टर दिस दीज आर द सेल्स, इनको हम सेल बोलते हैं जिसके आगे एरो बना होता है। तो here you can type your code and it will be run. Okay, like if I type print and okay hello, and just click on this, or you can press Control plus Enter if you're Windows, and नीचे ही साथ ही आ जाता है hello. Okay, so it is just on browser and no need of IDs and all. Okay, so this is the file which we will be following, and I will share you this maybe on the Discord channel, Discord server. Okay, so let's start with the basics. Key the most basic thing is using the print statement, using which you can print anything which is inside it. Like for example, here it is. I have typed hello and as soon as I click over here तो यहाँ पर hello and नीचे एक empty space, ठीक है। तो इसमें obviously like I said earlier कि it is easy to use, syntax काफ़ी simple है as compared to C। अगर तुम लोगों ने अभी करी होगी कि कोई C आउट नहीं, कोई अदर लैंग्वेजेस में जैसे प्रिंट करते हैं तो वैसा कोई इश्यूज नहीं है, सिंटैक्स काफ़ी सिंपल है। ओके, तो अ फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट प्रिंट कि अगर तुम्हें अंदर शो करना है सिंगल कोट डबल कोट, तो दिस इज द वे यू यूज अ बैक स्लैश and it just gets displayed, because you know we are also using these quotes in the beginning and the end for the string only. Okay, so I suppose इतना क्लियर हो गया होगा सबको। सो लेट्स कम टू द इनपुट फंक्शन कि ये तो हो गया, प्रिंट कर लिया हमने, जो भी अंदर लिखा वो प्रिंट होकर आ जाएगा। तो यू कैन कीप ट्राइंग अपने कोलैब में जो भी मैंने तुम्हें बनवाया था लाइक इधर, तो यू कैन कीप ट्राइंग। आई विल वेट इफ यू वांट मी टू वेट। सो नेक्स्ट इज विल गो ऑन इनपुट फंक्शन। तो जैसे कि हम स्कैनफ यूज़ करते हैं सी में इनपुट लेने के लिए, तो वैसे ही इधर हम यूज़ करते हैं इनपुट, जैसे हमने प्रिंट लिखा था वैसे ही सिंपल इनपुट फंक्शन। तो
जब भी ये कॉल होगा फंक्शन, तब ये लाइक प्रोग्राम वहाँ पर पॉज हो जाएगा, वो वेट करेगा आपके इनपुट की एंड तभी आगे बढ़ेगा। और लाइक यही है कि इसका इनपुट अपने आप इंटरप्रेट कर लेते हैं पाइथन कि आपने टेक्स्ट एंटर किया, स्ट्रिंग एंटर किया, तो इट जस्ट हैसल फ्री। एंड लेट्स कम टू दिस एग्जांपल कि आई हैव टेकन अ वेरिएबल नेम एंड उसमें मैंने इनपुट की वैल्यू स्टोर करवा दी, एंड व्हाट वी राइट इन साइड ऑफ दिस ब्रैकेट्स कि क्या शो होगा जब ये लाइन चलेगी। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, जस्ट अ मिनट। तो जब मैंने इसको किया तो यू कैन सी व्हाट्स योर नेम, जो मैंने अंदर लिखा था वो चीज़ डिस्प्ले हो गई, एंड साथ ही एम्प्टी स्पेस है जिसमें मैं एक कोई एग्जांपल नेम लाइक रोहित लिखते हैं, वो रोहित चला गया नेम में। तो सिमिलरली आई कैन प्रिंट आउट द नेम यूजिंग द वेरिएबल नेम जिसमें मैंने स्टोर करवाई वो वैल्यू, और प्रिंट में हमने देख लिया था जैसे हम सिंपल हेलो कोई भी स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा दी, अगर हमने कोई वेरिएबल डिस्प्ले करवाना है तो उसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एनी यू नो द कॉमास एंड ऑल। तो using the plus sign we join them कि after this string this variable will be displayed and then again the string will be displayed। तो if I run it again तो फिर से मांगेगा input and here it is, welcome Rohit to the introduction to Python। Okay, similarly you can try out other things like Rohit, and then after this print statement is run it will again take input and where are you from, type anything CHD Chandigarh and it will display। So it's just as simple। So let's do another example। here तुम लोगों ने देख लिया कि कैसे हम किसी वेरिएबल में साइन करते हैं वैल्यूज। तो सिमिलरली जब हम इंट की वैल्यू साइन करेंगे तो उसके लिए वी नीड टू स्पेसिफाई दैट वी आर लाइक यू नो कि ए में हम इंटीजर डाल रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ स्ट्रिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटीजर भी स्ट्रिंग में ही स्टोर होता है। तो ये स्टेटमेंट तुम लोग देख सकते हो कि वी विल कॉल इनपुट फंक्शन जिसका लिखा होगा एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड इट विल बी स्टोर्ड एज अ इन डाटा टाइप इनटू ए। तो अभी के लिए इफ को मैं रहने देता हूँ, इफ से हम बाद में बात करेंगे। जस्ट वी कैन राइट आउट print a, okay, it will print what we have entered। to enter value of a I have entered 5 and it will display 5। okay, so just simple। so after this like you have seen how variables can be declared and assigned a value like name and city जो हमने ऊपर किया। तो एक सिंपल कोड ये है, जैसे मैंने ए का भी ऊपर बताया था, सिमिलरली ए में डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दिया एंड उसको प्रिंट कर दिया। तो अभी जो कोड सेल्स हैं इसमें लाइक तुम लोग भी ट्राई करो एंड कोई प्रॉब्लम आती है तो बताओ। तो और भी लाइक फंक्शंस अब हम इसके अंदर आ जाते हैं धीरे धीरे कि लेन आ गया जैसे, तो लेन स्टैंड फॉर लेंथ। अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया var3 जिसमें ये सारी रैंडम स्ट्रिंग स्टोर करवा दी, तो इसमें अगर प्रिंट करूंगा मैं लेन ऑफ var3 तो वो लेंथ कर देगा, मतलब इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ, एंड इट इज 62। ओके, सो दीज आर सम बेसिक फंक्शंस जो कि कहीं ना कहीं यूज होते रहते हैं। तो अब आता है आगे मल्टीपल असाइनमेंट। अगर हमने जैसे असाइन किया था इसमें a की वैल्यू 20, तो सिमिलरली यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स एट अ टाइम। लाइक इन्होंने ये वाला सिंटेक्स यूज कर रखा है कि a, b, c, d इक्वल टू 1, 5, 2, ये स्ट्रिंग लिखी हुई है। तो इधर क्या है कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज उठाएगा एंड इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द वेरिएबल्स। सो दिस इज द मल्टीपल असाइनमेंट कॉन्सेप्ट एंड वी कैन सिमिलरली प्रिंट इट along with। ठीक है, तो ये किया एंड इट इज प्रिंटेड।
ओके, सो सिमिलरली इक्वल करके असाइन कर दिया, सबको इक्वल असाइनमेंट हो गई, लाइक A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू सब अप टू इक्वल टू 10. तो नाउ कम्स स्वैपिंग विच इज अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि uh, अगर तुम लोगों ने सी में कर रखा है कि दो चीज़ें स्वैप करनी है, तो क्रिएट अ डमी वन कि लाइक ए इक्वल टू बी, टेम्प इक्वल टू बी एंड सो ऑन. तो इसमें क्या होगा कि जस्ट राइट आउट वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू इक्वल टू दिस, लाइक वैल्यू वन की वैल्यू वैल्यू टू में, सॉरी वैल्यू टू की वैल्यू वैल्यू वन में एंड वैल्यू वन की वैल्यू टू में. ओके, तो सिमिलरली वो प्रिंट हो जाएगा. तो यहाँ पर भी तुम लोग देख रहे हो कि वही वाला कंसेप्ट यूज हुआ है कि स्ट्रिंग हमने सीधा शो करवा दी यूजिंग इन्वर्टेड कॉमर्स एंड वैल्यू वन वैल्यू टू जो कि वेरिएबल्स हैं डायरेक्टली विदाउट एनीथिंग, सिंपल डिस्प्ले. तो अब आते हैं बूलियन वेरिएबल्स, लाइक वी ए आर वेरिएबल में हमने नॉट ट्रू वैल्यू रखी है एंड वी आर वन में ट्रू वैल्यू रखी है. तो because these are string, so we will be displaying directly as key values of variable and variable one are str vr and str vr1. तो नॉट ट्रू का सिंपल उसने डिस्प्ले करवा दिया फॉल्स एंड ट्रू. लेट मी सी, या सो ट्रू एंड फॉल्स एज यू ऑलरेडी माइट नो कि सिर्फ बूलियन होते हैं कि यस नो ट्रू फॉल्स 1 0 दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, so next example we have is comparison using the relational operators which are less than, greater than, equal to, less than, equal to and so on. So it will automatically show false or true on the basis of the thing कि अगर मैंने x की वैल्यू 2 असाइन किया तो print x less than 1. ओके, अगर x ये false आ गया तो उसने डायरेक्टली false शो कर दिया. तो if else statements, it is also simple like as you might have done in C. I'm assuming कि सबने C कर लिया है थोड़ी बहुत. तो इसमें भी कोई ब्रैकेट्स का इशू नहीं है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इंडेंटेशन की स्पेसेस होनी चाहिए, तभी वो आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये इफ के अंदर आ रहा. तो लेट्स स्टार्ट विद इफ एल्स कंडीशंस. सो इफ ट्रू इक्वल टू ट्रू मतलब कि यहाँ पर क्या हो सकता था कि आई कुड हैव अज्यूम्ड अ वेरिएबल एंड उस वेरिएबल में मैं किसी को वैल्यू पूछ सकता था, लाइक इन्होंने यहाँ पर कर रखा है कि टेक अ नंबर इनपुट फ्रॉम यूजर एंड चेक फॉर इवन एंड ऑड. सो दिस इज व्हाट यू कैन ट्राई. आई विल जस्ट शो इट कि इफ ट्रू इक्वल टू ट्रू प्रिंट इफ ब्लॉक एल्स दिस. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स सिंपल प्रिंट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमने रन करके देखा एंड इफ ब्लॉक आ रहा. सो यू कैन सी कि इट जस्ट अ सिंपल सिंटैक्स कि डबल इक्वल टू यूज करते हैं हम इसमें एंड जस्ट सिंपल इफ एंड एल्स विद अ कोलन एंड इंडेंटेशन विच इज मस्ट. ओके, एंड नो ब्रैकेट्स आर रिक्वायर्ड, नो सेमीकोलन, नथिंग. Okay, so you can try this function out key, take a number as input from the user and check if it is even and odd. You can try it out. I'm waiting. If anyone does it, let me know. Like just take a simple variable, call it, like take input into it, like we already studied, and just put it in the if else condition and check if it's even or no, even or odd. Type done जिसका हो जाता है. I will wait for another minute, वरना हम आगे प्रोसीड करते हैं. किसी का भी हो जाता, डन टाइप करो. नहीं, सीख का हो गया.
चलो, I hope you will be able to do it. There is a simple program similar to it कि एक नंबर लिया, उसमें हमने इनपुट करवा दिया, तो फिर उस नंबर पे हम if else कंडीशन लगा कर देखेंगे कि सिंटैक्स एरर है। किधर है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। (2 = 0). ओके, उसको इंट में लिया था इनपुट के टाइम, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में स्टोर होती हैं वैल्यूज, लाइक इधर a = int ऑफ इनपुट। ओके, करो ये ट्राई। is it working this? नहीं। या फिर ये देखो, यहाँ पर जैसे इन्होंने ये रखा है इंट ऑफ नम, तो उसको फिर इंट ऑफ a लो कि, एक मिनट, बाय द वे अगर किसी को यहाँ पर नहीं आया तो सिंपल यहाँ पर जाओगे तो कोड और टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाती है क्रिएट करने में। लाइक यू कैन डू इट लाइक दिस कि int of a। आई थिंक ये तो वर्क कर जाना चाहिए, बाकी आई थिंक दो का वर्क कर चुका है। तो तो काफियों का वर्क कर गया है। यश वर्क किया कोई? सो थिंक नहीं वर्क कर रहा है इसका। स्क्रीन शेयर करना है, लेट्स सी राइट नाउ, या फिर कोड शेयर करो वो। डॉट, ओके, कोलन नहीं यूज किया? ये यू कैन जस्ट अनम्यूट। कोलन भी यूज करना ना, ये लाइक यहाँ पर मेंशन है, तो आई थिंक उससे हो जाना चाहिए। वी विल मूव फॉरवर्ड कि ये तो हो गया सिंपल इफ एल्स लेडर बेस्ड कि इफ एल्स एल्स अगर दो चार बार आ गया एंड यू कैन जस्ट टाइप elif normal things similar to C। तो there is this ternary operator like input लिया similarly number and output, like you can see if or else we are used directly in single line, so we can just run it number 5 and it's positive। so okay, I think if and else सबको clear हो गया होगा, तो let's just start with loops। okay, yes, is presenting। yes, please unmute yourself। और इंट हेलो इंट के साथ कॉलन कॉलन नहीं आएगा, इफ और एल्स के आ जाएगा। क्या करेंगे? या ओके, नहीं इसमें इंट नहीं रिक्वायर्ड होता, सिंपल टाइप करो a = 2। लाइक आई सेड ना, ऊपर जितने भी मैंने वेरिएबल यहाँ पर लिए हैं जिसमें भी वो नहीं रिक्वायर्ड था उसकी डेक्लेरेशन, बिकॉज पाइथन itself does this work for you। okay, then stop sharing। सर क्रैश हो गया, शायद स्क्रीन क्रैश हो गई है सर। हेलो मेरी सर, मेरी हो गई, आ गई है, वापस आ गई है। हाँ यस सर। शो हो रहा था उनकी। So okay, we can proceed with loops।
कि Yes, sir. ओके, तो सिमिलरली लूप्स भी हम, जैसे लूपिंग हमारे फंक्शन आते हैं फॉर वाइल एटसेट्रा, तो इसमें हम लेंगे नंबर्स, नंबर्स की लिस्ट है ये कि 1 10 20 30 40 50, लिस्ट विल बी कवर्ड इन डिटेल, तो अभी उसके बारे में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, जस्ट सी इट लाइक कलेक्शन ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, सो नंबर्स है लिस्ट का नाम, जिसमें नंबर ये वाले एलिमेंट्स हैं। तो सम एक वेरिएबल है, सिमिलरली हमने जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया है, और जैसे कि फंक्शन होता है कि सारा एलिमेंट्स का सम करना, तो हमने फॉर लूप लगाया, फॉर एन इन नंबर्स और कोलन, देन इन द नेक्स्ट लाइन एज इंडेंट सेंसिटिव, मैंने बताया था तुम लोगों को, तो ये इंडेंट होना चाहिए, इसके बिना पाइथन नहीं पता लगा पाएगा कि अच्छा ये लूप के अंदर आ रहा है कि अलग स्टेटमेंट है। तो इसमें सम इक्वल टू सम प्लस एन, इट्स अ बेसिक फंक्शन अगेन, कि वो हर बारी एन की वैल्यू चेंज होगी और वो सम में ऐड होती रहेगी, एंड एट द एंड इट विल प्रिंट सम। तो अगर हम इसको रन करें तो इट विल डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर इनसाइड द लिस्ट। तो अगर मैं इसको तुम्हें दिखाने के लिए ये प्रिंट करूं लूप में, कि जितनी बारी लूप चलेगा साथ साथ पहले एन प्रिंट करे कि एन क्या है, तो हमें क्लैरिटी मिलती है कि अच्छा एन इज बेसिकली हर एलिमेंट जो कि वो प्रिंट भी कर रहा है और वो हर बारी सम में भी ऐड हो रहा है। तो ओके, ये हमें अब समझ आ गया कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है। फॉर एक्स एन कुछ भी कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल इन नंबर्स और कोलन, और बस एंड में इंडेंट इज रिक्वायर्ड, बाकी इट वुड वर्क। तो एज ऑलरेडी सेड, फॉर लूप इफ एल्स जो भी है उसमें हमें इंडेंट सेंसिटिव है तो वो ज़रूरी है, और तुम्हें अगर कोड चलाते हुए एरर आए, इंडेंटेशन एरर, तो उसका यही मतलब होगा कि इंडेंट सही नहीं है, तो उसको इरेज करके लाइक फिर से इंडेंटेशन अच्छी तरह से करो। तो इट इज़ अनदर सिमिलर सिंपल कोड कि फॉर नंबर इन दिस, तो इसमें क्या हुआ, हमने सीधा ही वो लिस्ट ले ली इंस्टेड ऑफ उसका वेरिएबल। तो जैसे पिछले में n था जो कि हर एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था, इसमें नंबर है जो कि हर एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और वो प्रिंट कर देगा। ओके, सो अनदर फंक्शन इन पाइथन इज द रेंज। तो रेंज बेसिकली यूज होता है दो नंबर्स के बीच में नंबर्स डिस्प्ले कराने को, लाइक इसमें रन करूं तो तुम देख सकते हो 1 to 9, इसमें बस लास्ट नंबर नहीं इंक्लूड होता रेंज में, तो 1 up to लास्ट नंबर -1 वो सारा प्रिंट हो जाएगा। तो ठीक है, आई थिंक ये समझ आ गया होगा सबको। तो नेक्स्ट इज़ वाइल लूप। तो वाइल में अगर मैंने एक वैल्यू लेट की 2, सिंपल वेरिएबल वैल्यू लिया, उसमें 2 वैल्यू आ गई, तो वाइल द वैल्यू इज लेस देन 7 इट विल प्रिंट द वैल्यू, और हर बारी प्रिंट करने के बाद वो वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देगा। सो रन करके देखें तो वैसे ही होगा। तो सिंपल कोलन इंडेंट इज रिक्वायर्ड, और जो भी करना है उसके आगे वैसे आ जाएगा। तो इसमें कोई एंड वाइल एंड फॉर वैसा कुछ कुछ नहीं रिक्वायर्ड, सिंपल कोड वर्क करता है ऐसा। तो एक्सरसाइज तुम लोग कर सकते हो ये अपने आप सोच के आराम से, कि जैसे कोई मैंने नंबर लिया डाटा का, तो उसको तुम लोगों ने प्रिंट करवाना है रिवर्स ऑर्डर में, कि लाइक वाइल लूप यूज़ करके, कि 9465 ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इधर मैं एक तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ये वाला नोट कर सकते हो, मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर दूंगा वैसे ये शीट डिस्कॉर्ड पे, तो ये कर लेना ट्राई। तो एक एग्जांपल है, जैसे कि दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल 1 2 जिसमें टेस्टिंग एंड आई एम रनिंग, एंड वेरिएबल 3 में लिखा हुआ है हेलो। तो हमने प्रिंट करना है वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2, और इसमें अब ये चीज़ आ जाती है जो कि लिस्ट में हम आगे फिर से पढ़ेंगे, कि कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले होगा, मतलब जो पर्टिकुलर वर्ड है, लाइक 0 to 3 है। ओके, तो 0 इंडेक्स से लेकर 0 1, लाइक ये देखो ना, ये 0 t हो गया, 1 2 3। ओके, मतलब 3 - 1, तो 0 1 2, तो ये TES डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली इसमें
अगर हम ये चीज़ें हटा दें तो ये डिस्प्ले हो गया आई एम रनिंग में 1 से लेकर, क्योंकि 0 था आई मिस कर दिया, 1 इज द स्पेस, तो वो स्पेस आ गई, ये वाली स्पेस आ गई, फिर ए एम और आर आ गया, आर तक कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। तो ये एक सिंपल चीज़ है, इंडेक्सिंग होती है जो हम कर सकते हैं, और इसके बारे में हम आगे कवर करेंगे। तो ये हो गया सिंपल स्ट्रिंग्स तक का पार्ट तुम्हारा, कि स्ट्रिंग का और भी वेरिएशंस आती हैं, लाइक तुम -1 यूज़ कर सकते हो, पीछे से वो शुरू हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। और ये रहा आउटपुट फॉर्मेटिंग। अभी जैसे हमने देखा कि प्रिंट हम कैसे कर रहे हैं चीज़ें, तो इट इज़ अनदर वे ऑफ प्रिंटिंग, कि जैसे हम सी वगैरह में करते हैं एम्परसेंट और ये यूज़ कर कर, तो सिमिलरली ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अभी तक किसी को कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो, किसी का कोई फंक्शन वर्क नहीं किया अगर ट्राई करो साथ साथ, अपने जस्ट अनम्यूट करो एंड पूछ लो। किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट, बिकॉज पाइथन इज जस्ट लाइक सिंपल, दो चार चीज़ें सिंटैक्स में भी ध्यान रखनी पड़ती हैं, कि इंडेंट बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एंड बाकी कोई एंड स्टेटमेंट नहीं, कि फॉर आ गया तो एंड फॉर कुछ नहीं। तो आज का तो यही था हमारा, एंड एक्सरसाइजेस हैं, आगे क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये वाला लिंक शेयर कर देता हूँ अभी डिस्कॉर्ड में। तो आई वुड लाइक टू सी कि कौन कौन कर पाते हैं, एंड मैं हैकर रैंक के भी करूँगा शेयर लिंक्स, जिसमें कि 5 से 10 क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे बेसिक से। तो इट वुड गिव यू अ गुड हेड स्टार्ट अगर तुम हैकर रैंक में शुरू करना चाहते हो। बाकी बेसिक्स लाइक ये लेवल से लेकर अप टू एवरेज लेवल अभी कर लो तो बेटर है, कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए, ताकि तुम आगे कोई क्वेश्चन करोगे एक्सप्लोर चीज़ें लाइक मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट एक्सेट्रा, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी कल हम कवर करेंगे टॉपिक्स लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ गया, थोड़ा उसका फंक्शंस आ गए डिटेल में। तो ये मैं शेयर करता हूँ चीज़ें डिस्कॉर्ड में, किसी को कोई डाउट है तो कोई पूछ सकता है। कोई किसी को इंस्टॉलेशन में डाउट आ रहा है, कोई आईडी पे चलने का कुछ पूछना है किसी को तो। सर जैसे सी को तो जीसीसी से कंपाइल कर लेते हैं टर्मिनल में, तो फिर इसको कैसे रन करेंगे इसको अगर लोकली रन करना हो तो? यू मीन ऑन आईडी? यस सर। तो इसमें यार मतलब ऐसा ही है, जैसे मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि एक फोल्डर में ही मैंने लिया, वीएस कोड यूज़ किया है ना, यस सर, वीएस कोडिंग, यस। तो इसमें मैंने एक फोल्डर लाइक बनाया हुआ है, तो कोई भी फाइल क्रिएट कर ली सिंपल ही, क्या क्रिएट करें, लाइक testing.py, ठीक है। तो इसमें कोई वैसे इशूज नहीं है कंपाइलेशन के, सिंपल रन होता लाइक प्रिंट, ओके। तो ये हेलो डिस्प्ले होगा, तो इसमें ऐसे तो वैसे कोई इश्यूज नहीं है। अगेन इट्स अ मच इजियर लैंग्वेज। ओके सर। कि कोई भी डाउट्स है तुम लोग पूछ सकते हो डिस्कॉर्ड पे, मैं अभी तुम्हें शेयर कर दूंगा उसके लिंक्स, हैकर रैंक वगैरह के, तो तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और डिस्कॉर्ड पे ही पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो, डिस्कॉर्ड लिंक, कनिष्क कैन यू सेंड द डिस्कॉर्ड लिंक? तो कोई डाउट्स हैं तो यू ऑल कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव।
बाय द वे अगर किसी को कुछ और इंटरेस्ट है कि जैसे मैंने अभी तुम लोगों को ग्राफिक्स का दिखाया था, तो यू ऑल कैन ट्राई ऐसी चीज़ें ढूंढो और क्या क्या हैं, फिर बनाओ, क्योंकि मज़ा आता है, ऐसे इंटरेस्ट बनता है प्रोग्रामिंग का। तो इट जस्ट अ लाइब्रेरी के बारे में यूट्यूब पे एक अच्छी 30-40 मिनट की वीडियो है। तो लाइक राइट जाना, ऊपर नीचे सर्कल, एंड दीज आर द थिंग्स। तो यही है, कुछ है डाउट्स पूछ लो वरना यू कैन स्टॉप।